this chapter 9 is divided into two sections. So he will take the first part of 9th chapter, that is Kamathan Vibhag Sangha Vibhago, and the second part or the last portion of the 9th chapter he will take after lunch. So before the formal start of the lecture, I would like to uh, call Dr. Rahul Kumar Maurya ji to welcome Professor Siddharth Singh with garland. So, sir, either you wish to come here or can continue in situ. Well, good afternoon and namaste to all of you. I'm again thankful to the Department of Philosophy and Religion, ICPR, and its distinguished and energetic coordinators, Dr. Baleshwar Prasad ji and Dr. Rahul Maurya, for giving me this opportunity. Today we are going to deal with the chapter 9th. Chapter 9th is all about mind and the strategies to liberate the mind. The methods to bring mind to that stage where not only you learn something, you unlearn also. Unlearning has been a very important component of the Buddhist philosophy. You know that in the introductory part of Abhidhamma Sangaho, certainly someone may have told you that Buddhism talks of two kind of truths, Sammuti Satya and Paramartha Satya. Did anybody tell you? The Sammuti Satya, the truth about the empirical world, the conventional truth, and Paramartha Satya is the ultimate truth. And these four Chitta Chetsik Rupa Nibbana, this Chatudha Paramartha, four ultimate truths, that is a struggle to explain you that certain ultimate truths are existing behind this conventional truth. The similar things were developed into the philosophy of Nagarjuna, into the form of Shunya. That is why Nagarjuna in Mool Madhyamik Karika, he doesn't make distinction between Paticca Samuppada and the dependent origination and Nirvana, or Sansara and Nirvana. And in your introductory lecture, you may also have come across that Abhidhamma propounds three kind of the stages, or Buddha's learning may be divided in three
ways. The first one is Pariyatti. The Pariyatti is about learning the Buddha's teachings through its text, through listening and other mediums. And then the Patipatti, the second one, following the path, whatever you have learned through the books, through the sermons, through the teachings, you have to follow that teachings, applying in your life. And it is fructified into the form of realization, which is known as Patived. So, Pariyatti, Patipatti and Patived, सम्मुति सत्य और परमत्थ सत्य, इस फाउंडेशन के साथ हम बात करेंगे आज के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है कमट्ठान संग्रह, कर्म स्थान का संग्रह। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म ने बाहरी चमत्कारों में विश्वास नहीं किया, लेकिन बुद्धिज्म ने जिस चीज को समझा वो मन का चमत्कार। बुद्धिज्म के अनुसार सबसे बड़ा चमत्कार अपने आप में माइंड है, और उस माइंड को साइंटिफिकली हम जानते हैं कि उस मन की शायद 0.0001% जो साइंटिफिक थियोरीज में कहा जाता है कि उसको भी हम कल्टीवेट कर पाए हैं, उससे ज्यादा कल्टीवेशन हमारा नहीं हो पाया। बुद्धिज्म के लिए मन अपने आप में चमत्कार है, यदि उसके पोटेंशियल को आप उतना ज्यादा विकसित कर सकें। और जिसने विकसित कर लिया उस अवस्था तक, वो बुद्ध कहलाया। इसी अवधारणा के अनुसार न सिर्फ गौतम बुद्ध और भी बुद्धों की अवधारणा आई कि जो भी इनलाइटेंड है वह बुद्ध है। जिसने भी उस अवस्था तक मन की शक्ति को पहुंचा दिया है वो बुद्ध है। मन स्वभावतः पूरी भारतीय परंपरा में बहुत चंचल कहा गया है। इसकी उपमा बंदर से दी जाती है बुद्धिज्म में कि फंदनम चपलम चित्तम दुरखम दुर्निवारयम उसुकारो व मेधावी उजुम च मेधावी उसुकारो व तेजसम। कि जिस तरीके से बाण बनाने वाला जैसे बहुत करीने से बाण को साधता है, उसको शार्प करता है, तेज करता है, और मन है फंदनम चपलम चित्तम, मन उछल रहा है इस डाली से उस डाली में जैसे बंदर उछलता है। उसे साधना बहुत कठिन है, दुरखम दुर्निवारयम है। तो उसको उसी तरीके से साधना चाहिए जिस तरीके से बाण बनाने वाला एक अच्छे बाण को शार्प करता है। उसी को आगे आप आज की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहें तो यदि आपने एक तलवार होती है जिसे कताना बोलते हैं, कताना जैपनीज तलवार है जिसमें हॉलीवुड पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। यदि आप लोगों ने किल बिल देखी हो, प्रसिद्ध एक्ट्रेस उमा थर्मन की,
उमा थर्मन एक बुद्धिज्म के प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, रॉबर्ट थर्मन उनकी बेटी है, इसीलिए उनका नाम उमा रखा रॉबर्ट थर्मन ने। तो किल बिल में उस तलवार की तलाश में, एक खास किस्म की तलवार की तलाश में, जो हथौड़ी हांजो है जापान में एक बनाने वाला, उसकी तलाश में जाती है कि वो तलवार मुझे चाहिए, क्योंकि उस तलवार, एक अच्छी कताना बनाने को, जो जापानीज सोर्ड होती है जिसे कताना बोलते हैं, उसमें कहा जाता है कि सालों साल लग जाते हैं मैनुअली बनाने में, और उसकी कीमत यदि आपको 20-30 लाख में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, यदि असली कताना। तो बाण को साधना उस काल में, बाण को शार्प करना एक तीर बनाने वाले के लिए, उसका उदाहरण धम्मपद में भगवान बुद्ध ने मन को साधने से दिया। मन को इतना महत्वपूर्ण बताया है कि कहा गया है कि मन आपका उतना हित कर सकता है जितना आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग कोई नहीं कर सकता। न तम माता पिता कईरा अये वापिच आतक यातका। न माता पिता आपके लिए उतना कर सकते हैं, न अन्य अये वापिच आतका, और न ही अन्य रिश्तेदार आपके कर सकते हैं। से ये सो नम तथो करे, क्या लाइन है भाई? है किसी को याद है? हाँ, उसके पहले का मैं बोल रहा हूं, है? न तम माता पिता कईरा ये वापिच आतका, सम्मा परिहितम चित्तम सय्यसो नम तदो करो। जब मन सम्मा परिहितम चित्तम, अच्छी तरीके से सध गया है तीर की तरह, तो उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। वो माता पिता से भी ज्यादा, अपने परिवार के लोगों से भी ज्यादा हितकारी है। और दूसरे तमाम उदाहरण मिले हैं कि जिसको एक लोकप्रिय उदाहरण है कि हजारों संग्राम जीतने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने मन को जीतें। तो मन को जीता कैसे जाए, मन को साधा कैसे जाए, और मैंने बात की लर्निंग और अनलर्निंग की बात। कहा जाता है कि आगे की दुनिया ऐसी होने वाली है जिसमें कि वो व्यक्ति सफल होगा जो लर्न कर सकता है और अनलर्न कर सकता है। बुद्धिज्म में, चाइनीज मिथोलॉजी में, और फिर बाद में जापानीज ने भी उसे अडॉप्ट किया, तिब्बतन में भी वो स्टोरी आई। आता है कि एक बहुत बड़े विद्वान थे बौद्ध धर्म के, और बहुत शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे, और वो किसी ज़ेन बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे बौद्ध धर्म पे संवाद करना है, लेट्स हैव डायलॉग ऑन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ लिबरेशन। जो बौद्ध भिक्षु था उसने बोला कि बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले चाय पी ली जाए। बोले बिल्कुल। तो चाय तैयार की, बौद्ध भिक्षु ने कप में डालना शुरू किया। डालने के समय डाला तो कप में से चाय गिरती जा रही है, भिक्षु डालता जा रहा है। प्रोफेसर को लगा कि क्या किस पागल से मुलाकात हो गई है? गिरी जा रही है और चाय और महोदय को सुध नहीं है। तो प्रोफेसर ने बोला कि भंते, आप देख रहे हैं ये कि ऑलरेडी पहले से कप फुल है, तो भी आप उसमें चाय डालते जा रहे हैं, गिरती जा रही है।
तो बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, जो जेन मास्टर था, उसने बोला एग्जैक्टली कप पहले से भरी हुई है तो उसमें और चाय कहां से डाली जाए। जब इतने इतने तर्क वितर्कों से भरे हुए आए हो, दार्शनिक तर्क वितर्कों से भरे हुए आए हो, तो पहले तुमको अपना कप खाली करना पड़ेगा, तब जाकर के लिबरेशन की बात, सातोरी की बात, जापानीज में सातोरी निर्वाण के लिए आने वाला शब्द है, सातोरी की बात तब संभव। सो फर्स्ट एम्प्टी योर माइंड, and once you have emptied your mind, then it would be like clean slate where something has to be there is a possibility of having something new on the clean slate. So technically Buddhism जो originally रहा है, it has been against logical mind, because logical mind has little possibility of liberation. इसीलिए जब रूप ध्यान में आता है तो वितक्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहित प्रथम रूप ध्यान, फिर वितक्क हटता है, इनिशियल एप्लीकेशन, विचार भी हटता है, प्रीति भी हटती है, अंत में उपेक्षा और एकाग्रता बचती है। तो अभिधम्म आगे चल के एक लॉजिकल साइंस के तौर पे डेवलप हुआ। बुद्धिज्म के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसपे कि जिंदा है, कोई बात नहीं, अभी मेरा प्रवचन चल रहा है, जब स्लाइड पे आएंगे तो भूल गया कहा था। हाँ, अभिधम्म बुद्ध वचन है कि नहीं, तीसरी बौद्ध संगीति में उसकी जगह बनी या प्रथम बौद्ध संगीति में उसका प्रारूप तय हो गया था, उसको लेके डिबेट हो सकती है। डिबेट की पूरी पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि अभिधम्म पिटक की पूरी संरचना जब आप पढ़ते हैं तो वो भगवान बुद्ध का जो पूरा स्वभाव है, सरल ढंग से संवाद करने का, 1-to-1 डायलॉग करने का, वो टैली नहीं करता, वो मैच नहीं करता अभिधम्म पिटक के को पढ़ने में कि इतना स्टैटिस्टिकल, इतना मैथमेटिकल क्या भगवान बुद्ध हो सकते थे जो आम लोगों से, आम आदमी की भाषा में संवाद करने चल रहे हैं। क्या उनको इतनी गणित लगाने की आवश्यकता थी कि 89 प्रकार के चित्त वगैरह वगैरह, फिर लोकोत्तर चित्त कैसे 8 से 40 हो जाते हैं, इस पे बात हो सकती है। बुद्धिज्म के और बहुत सारे ऐतिहासिक मुद्दे हैं, उन पे भी बात हो सकती है और उन पे भी डिबेट बनी रहेगी। स्त्री, भगवान बुद्ध ने सबसे पहला पूरी दुनिया में उदाहरण है कि स्त्री संघ, भिक्षुणी संघ की स्थापना की, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस के साथ की। वो कंडीशन उन्होंने लगाई कि भगवान बुद्ध के बाद के शिष्यों ने, जिन्होंने कंपाइल किया, उन्होंने लगाई। इस पे भी बात हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पे बौद्ध धर्म में वाद विवाद और संवाद चलता रहेगा। उसमें अंतिम नतीजे तक पहुंचना मुश्किल। रिसर्च मेथोडोलॉजी में, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में 2 शब्द होते हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आप ये तय करते हैं, मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप आदि शंकराचार्य पे शोध कर रहे हैं, तो आपके पास जो उपलब्ध प्राथमिक ग्रंथ हैं उसमें you will have a challenge to decide a certain कि which were the text actually written by Adi Shankaracharya and which were perhaps
on the name of the Shankaracharya, which are just attributed to Shankaracharya. तो external criticism में you need to decide the corpus of the literature कि कौन सा साहित्य है। यदि आदिदास शंकराचार्य के जीवन और कृतित्व पे आप कर रहे हैं तो कौन से वो ग्रंथ हैं जिनको आपको लेना चाहिए शोध के लिए। रिसर्च, आप सब लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च के लोग हैं, तो कंटेक्सचुअल ढंग से मैं उसको बता दे रहा हूं। ये एक पहली चुनौती है कि सिर्फ इस विश्वास में, भक्ति भाव से आप मान ले रहे हैं कि जिस पे शंकराचार्य का नाम लिखा है वो सारे के सारे होंगे। यही बात बुद्धिज्म में नागार्जुन के बारे में है बहस। नागार्जुन रसायनाचार्य और भगवान नागार्जुन बौद्धाचार्य क्या एक ही थे? नागार्जुन के नाम पे जो ग्रंथ मिलते हैं, आचार्य वसुबंधु के नाम पे जो ग्रंथ मिलते हैं, आचार्य धर्मकीर्ति के नाम पे जो ग्रंथ मिलते हैं, वो सारे के सारे एक ही धर्मकीर्ति द्वारा लिखे हुए थे या अलग अलग धर्मकीर्ति थे? उसको लेकर के डिबेट चलती रहेगी। इंटरनल क्रिटिसिज्म में आप ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आपने शंकराचार्य के नाम पे 10 ग्रंथ मिले, उनमें से 5 को आपने एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करके ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो है ऑथेंटिक आदि शंकराचार्य के हैं। उसके बाद आपका अगला संघर्ष शुरू होना चाहिए कि जो आदि शंकराचार्य उसमें वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म से आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वही आप समझ रहे हैं या अब तक विद्वानों ने वही समझा जो वास्तव में आदि शंकराचार्य कहना चाहते थे। बुद्धिज्म को लेकर क्यों जरूरत पड़ी कि वॉलपोल राहुल को व्हाट द बुद्धा टॉट लिखना पड़ा, रिचर्ड गोमरिच को फिर व्हाट द बुद्धा थॉट लिखना पड़ा। अभी तक ये संघर्ष चल रहा है कि भगवान बुद्ध की क्या क्या जो सारी चीजें मिल रही हैं उनमें उनके पैराडॉक्सेस क्यों हैं, और पैराडॉक्सेस हैं, ढेर सारे हैं। उसको जस्टिफाई करना, उसको डिफेंड करना किसी भी बुद्धिज्म के स्कॉलर के लिए या रिसर्चर के लिए बड़ी चुनौती है। वो अंतिम तक मामला सेटल नहीं हो पा रहा है। और वो प्राचीनतम भारतीय साहित्य उपलब्ध है जिसमें समाज है, जिसमें सिर्फ वो उपदेश नहीं है, तत्कालीन समाज है, बुद्धिज्म क्यों एग्जिस्टेंस में आया, तमाम चीजों पे बहस होती रहेगी और होनी चाहिए, और हम किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, ये भी तय है। लेकिन अभिधम्म को, जैसे मैंने बोला, अभिधम्म पिटक को लेके निश्चित तौर पे हिस्टोरिकल कॉमन सेंस से भी आप एग्जामिन करेंगे तो ये मानना मुश्किल होगा कि अभिधम्म पिटक भगवान बुद्ध के मूल वचन हैं। अब उसको घसीट वसीट करके हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, क्या अभिधम्म बुद्ध वचन है? उसमें छात्रों को सिखाते हैं कि बेटा लिखो कि फलाने उसमें हम XYZ सूत्र में है भगवान बुद्ध ने गोसिंग साल सूत्र में भगवान बुद्ध ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं इस उसमें है अभिधम्म का उपदेश दे रहा हूं, और उसके बाद मेरे मृत्यु के इतने 100 साल बाद उनको कंपाइल किया जाएगा, उन्हें लिखा जाएगा, मतलब उसे लिखा नहीं, संपादन किया जाएगा। लिखना तो बहुत बात की चीज है, वो श्रीलंका में हुआ 1st सेंचुरी कॉमन एरा में। तो ये तो एक अलग हो गया कि श्रद्धा भाव से आप ये समझाएं कि ट्रेडिशन में, मान्यता में ऐसा माना जाता है, इसलिए मान लीजिए कि अभिधम्म पिटक भी बुद्ध वचन है। लेकिन एक रिसर्चर, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक टर्म है मेथोडोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म, मेथोडोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म ये कहता है कि आप बहुत श्रद्धालु क्यों ना हो किसी विचार, किसी धर्म, किसी दर्शन के प्रति, लेकिन आपको वास्तव में कहना वो चाहिए, आपकी थीसिस को कहना वो चाहिए जो आपके रिसर्च के एविडेंसेस कह रहे हैं। आपके एविडेंसेस यदि आपकी अपनी मान्यता के भी खिलाफ जा रहे हैं तो भी आपको शोध में वही लिखना चाहिए, आपका डिसर्टेशन वही कहना चाहिए। आप किसी जगह पे गए हैं इस श्रद्धा भाव के साथ कि वो वहां तो मस्जिद को तोड़ के मंदिर ही बनाया गया है,
लेकिन आपने पाया एज ए आर्कियोलॉजिस्ट, एज ए स्कॉलर, रिसर्चर, पाया कि नहीं साहब वहां तो मस्जिद पहले ही थी, आप बहुत श्रद्धालु हिंदू हैं। लेकिन ईमानदारी से आपका रिसर्च ये कहना चाहिए कि वास्तव में मैंने यही पाया, और इसीलिए वेस्ट के और बहुत सारे लोगों ने अपनी थीसिस को खारिज किया है। जहां तक विटगेंस्टाइन को भी मैं जानता हूं, विटगेंस्टाइन सबसे बड़े उदाहरण है। तो इन सारी चीजों को लेकर के डिबेट होती रही है, और बुद्धिज्म की सबसे बुनियादी चीज यदि दो मानी जाए कि बुद्धिज्म ने दिया है या भगवान बुद्ध ने सिखाया है, तो नंबर एक जो मुझे समझ में आता है कि किसी भी स्थिति में किसी भी उसको क्वेश्चन करना, प्रश्न उठाना, प्रश्न करना। भगवान बुद्ध के पास आते थे लोग कि निंदा कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, XYZ। भगवान बुद्ध बहुत संयमी ढंग से बोलते थे कि तुमने ये एग्जामिन किया कि कहीं वो सही तो नहीं है? उनको देखो, उनकी बातों का मूल्यांकन करो, क्रोध नहीं करना है इस पे। फेमस जो कालाम सूत्र है उसको तो कौन नहीं जानता, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी रेफरेंस दिया, महापंडित राहुल सांकृत्याय ने भी दिया है। सबसे प्रिय है जितने भी विचारक रहे हैं पिछले 50 सालों में इंडिया में, है जो कालाम सूत्र का है कि न सिर्फ किसी बात को इसलिए विश्वास करो कि वो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, न किसी बात पे सिर्फ इसलिए विश्वास करो कि वो तुम्हें परंपरा से मिला हुआ है, न सिर्फ किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास करो कि तुम्हारे गुरुजनों ने उसे तुम्हें बताया है, न सिर्फ इसलिए किसी बात पे विश्वास करो क्योंकि तुम्हारे समाज ने उसे सिखाया है। उसका मूल्यांकन करो है अपनी विवेक से कि वो सही है कि गलत, उसके अनुसार मानो। आनंद बुद्ध के पास गए, उन्होंने बोला कि साहब आपसे बड़ा तो दुनिया में कोई ऐसा सिद्ध पुरुष है ही नहीं है, बुद्ध जैसा ना कोई हुआ ना कभी होगा। तो बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि आनंद क्या सुंदर बात तुमने कही, बहुत सुंदर बात कही तुमने, लेकिन अच्छा ये बताओ क्या तुमने इससे पहले के जितने बुद्ध हुए थे उन्हें देख लिया, उन्हें जानते हो? आनंद बोला नहीं। और क्या आगामी भविष्य में जो सारे के सारे बुद्ध होंगे, यहां बुद्ध की बात जब हो रही है तो अवतार के सेंस में मैं कतई नहीं बोल रहा हूं, बुद्ध का सीधा मतलब ये समझिए कोई भी सिद्ध पुरुष, सिद्ध व्यक्ति, सॉरी पुरुष नहीं, सिद्ध व्यक्ति। और अब जेंडर मतलब पॉलिटिकली हम लोगों को करेक्ट होना चाहिए, हम लोगों को बहुत आदत पड़ गई है ही बोलने की और पुरुष बोलने की, इस तमीज को हमें भी सुधारना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं लेकिन कई बार गलतियां हो जाती। तो सिद्ध व्यक्ति या जो भी इनलाइटेंड है, जो अवेकेंड है, जो ब्लेसेड है। तो जब आनंद ने बोला नहीं, तो बुद्ध ने बोला कि तब इतनी सुंदर आप्त वाक्य तुमने बोला क्यों कि ना बुद्ध जैसा कोई हुआ ना कोई होगा, है? तो प्रश्न उठाना एक बड़ा मैसेज है बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का। दूसरा जिसकी जहां से मैंने बात शुरू की है कि जिस बारे में बुद्धिज्म के किसी ब्रांच में तीसरी बौद्ध संगीति तक उसके 18 संप्रदाय हो गए थे, उसके बाद और कितने संप्रदाय अलग अलग देशों में हुए। चाइना में बहुत सारे संप्रदाय हैं, थाईलैंड में है, श्रीलंका जैसे थेरवाद देश में बहुत सारे संप्रदाय हैं, तिब्बतन बुद्धिज्म के अपने संप्रदाय हैं, जापान में कोई कम से कम यदि उप संप्रदायों को ले लिया जाए तो कोई 150-200 संप्रदाय होंगे, जिसमें मुख्य बड़े बड़े संप्रदाय तो 4 ही हैं जो अतीत काल में कामाकुरा पीरियड में, लगभग नारा पीरियड में हो गए थे। किसी संप्रदाय में इस बात को लेकर के कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि माइंड
और माइंड की प्योरिटी, माइंड की शुद्धता और मन की शक्ति, कैसे मन क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी शुद्धि कैसे की जाए, और मन की शुद्धि ही अंतिम उपाय है। इसको लेकर के बुद्धिज्म में कोई डिबेट नहीं। पटीच समुत्पाद को लेकर के, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को लेकर के कोई डिबेट नहीं। हर संप्रदाय में ये माना गया कि यदि कोई कार्य है, कोई इफेक्ट है, तो उसका कॉज होगा ही होगा। अब माइंड की बात आई तो माइंड में पहली जो कमठान शब्द है, अभी तक पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने कर्मों की बात की, अब हम कर्म स्थान की बात कर रहे हैं। कर्म स्थान वो आलंबन जो ध्यान के लिए आप प्रयुक्त करते हैं। ध्यान के लिए कोई आलंबन आप प्रयुक्त करते हैं तो वो कहलाते हैं कर्म स्थान। वो बुद्धिज्म के जो 2 कंपोनेंट हैं बौद्ध मेडिटेशन के, बौद्ध ध्यान के, समथ और विपस्सना, समथ के अंतर्गत इनका वर्णन आता है। पहला स्लाइड जो है वो ये कह रहा है, जो आचार्य अनिरुद्ध कह रहे हैं कि अब मैं मेंटल कल्चर, जो भावना, मेंटल कल्टीवेशन या मेंटल कल्चर के लिए जो 2 माध्यम हैं, जो 2 टूल्स हैं, समथ और विपस्सना, और कर्म स्थानों का मैं वर्णन करूंगा। ये पहली गाथा। ये दोनों समथ और विपस्सना एज ए तकनीकी टर्म इतने इलेबोरेट, इतनी व्याख्या के साथ, इतने विस्तार के साथ अभिधम्म से आए हैं। सुत्त और विनय में उनका इस किस्म से विस्तार नहीं मिलता, शब्द मिलते हैं, लेकिन प्रायः वहां सती, माइंडफुलनेस के तौर पे, या समाधि, या कहा जाता है कि सती के लिए दूसरा शब्द आता है अपमाद, इंडलेंस, विजिलेंस, हमेशा जागरूक रहना है। ये इस किस्म के शब्द मिलते थे। समथ और विपस्सना का इतना व्यवस्थित तरीका जिससे कि लोगों की साधना आसान हो सके, लोग साधना को सही ढंग से समझ सके, ये अभिधम्म की देन। समथ और विपस्सना और समाधि और प्रज्ञा के पहले जो शब्द आता है, जिसको कहा जाता है कि इनका समूचा आधार है पृथ्वी के समान, जैसे जो भी हरकतें, जो भी चीजें होती हैं, उसका आधार पृथ्वी ही होती है इस धरती पे, उसी तरीके से इन दोनों का आधार, समाधि और प्रज्ञा का आधार जो है वो शील है, मोरालिटी। मोरालिटी के बिना बुद्धिज्म में मेडिटेशन को माना गया है चित्त शुद्धि का माध्यम, लेकिन चित्त शुद्धि मान लिया कि बहुत बड़े साधक हैं, घंटों साधना में बैठ जाते हैं, निरोध समापत्ति तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का चरित्र यदि संदेहास्पद है, उसके अंदर वो शील नहीं है, तो बुद्धिज्म के अनुसार वो मुनि नहीं। बुद्धिज्म में एक ग्रंथ है सुत्त निपात, जिसमें कि एक बहुत सुंदर गाथा आती है, न दिठिया न सुतिया न याणेन मुनीध कुशला वदंति विषेनिकत्वा अनिघा निराशा तम मुनियोति भूमि। न सिर्फ दृष्टि, किसी के पास बहुत महान दार्शनिक दृष्टि है, न श्रुति, न भारी विद्वान है,
न ज्ञान। जो समझदार लोग होते हैं, मुनीद कुशला वदंती, जो कुशल लोग होते हैं इस संसार में, वो केवल दृष्टि, आपकी बहुत महान दार्शनिक दृष्टि है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत आपने श्रुतियों में सुन है, परंपरा से पालन किया है, उसके आधार पे जो कुशल लोग हैं, किसी को यहां मुनि नहीं कहते। मुनि वो है विषय निकत्वा अनिघा निराशा, जिसने अपने अंदर के सारे पापी धर्मों का, अपने अंदर के सारे क्लेशों का जिसने नाश कर दिया है, और जो तृष्णा से मुक्त हो गया है, वह मुनि कहलाता है। इसलिए शील जो है, मोरालिटी जो है, वो बुनियाद है। केवल चित्त की एकाग्रता को समाधि नहीं कहा गया है, कहा गया है कुशल चित्त एकाग्रता ही समाधि। कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। तो शील, इसीलिए आचार्य बुद्ध घोष ने, जिसे मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि विशुद्धि मग्ग, जिसे इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ये पूरा विश्वकोश सिर्फ 2 गाथाओं की व्याख्या पे आधारित है? और वो 2 गाथाएं हैं, एक जटा सूत्र है संयुक्त निकाय में, उसका है अंतो जटा बहि जटा, जटाए जटिता पजा, तम तम गौतमम पुच्छामि को इमं विजटय जटम। कोई भगवान बुद्ध से पूछ रहा है कि भाई अंदर भी जटा है, अंदर भी उलझन है, बाहर भी जटा है, अंतो जटा वही जटा, जटाए जटिता पजा, या पूरी प्रजा, पूरा संसार जो है वो जटा में, उलझन में उलझा हुआ है। तम तम गौतमम पुच्छामि, मैं आप गौतम से पूछ रहा हूं कि कौन इस जटा को, इस उलझन को सुलझा सकता। भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया है, उसी पे पूरी इमारत खड़ी है विशुद्धि मग्ग की। सीले पतिठाए नरो सपय्यों, चित्तम पय्यम च भावयम। शील पे प्रतिष्ठित होकर के जब व्यक्ति समाधि और प्रज्ञा की भावना करता है, सीले पतिठाए नरो सपय्यों, चित्तम पय्यम च भावयम, आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटे जटम। तो ऐसा प्रज्ञावान व्यक्ति, ऐसा उत्साही व्यक्ति, ऐसा दक्ष व्यक्ति इस उलझन को सुलझा लेता है। शील पे प्रतिष्ठित होकर के समाधि और प्रज्ञा की भावना, इसी में बौद्ध धर्म के तीनों जो कंपोनेंट हैं वो आ जा रहे हैं। शील की बात पीछे कुशल चित्त में हो गई। समाधि और प्रज्ञा इस चैप्टर का हिस्सा है। इसको लेके समथ जो शब्द है, समथ को प्रायः समाधि का पर्याय माना जाता है, और विपस्सना को प्रज्ञा का माना जाता है। टेक्निकली दोनों के की मीनिंग बिल्कुल एक नहीं है, लेकिन चूंकि विपस्सना से प्रज्ञा उपजती है, इसलिए विपस्सना और प्रज्ञा पर्याय की तरह इस्तेमाल होते हैं। समाधि, जैसा मैंने बोला, कुशल चित्त एकाग्रता ही समाधि। समाधि का मतलब होता है किसी चीज पे होल्ड करना, माइंड को होल्ड करना, कंसंट्रेशन करना, समाधि कहा जाता है। समथ का मतलब शांत, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस। लेकिन चूंकि जब आपका माइंड कंसंट्रेशन में जाता है, कंसंट्रेट करता है, तो वो शांत हो जाता है। और निर्वाण को परम शांति ही कहा गया। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम। आरोग्य से बड़ा कोई लाभ नहीं,
आप स्वस्थ रहें, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं। विश्वास परमायाति, विश्वास से बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं है। और निब्बानम परमम सुखम, और निर्वाण से बड़ा कोई सुख नहीं। तो कामनेस, ट्रैंक्विलिटी जो है वो समथ का अर्थ है। इससे पहले कि आपका लंच टाइम कब है बालेश्वर जी? 1:45, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि समथ और विपस्सना, मैंने बोला कि इतने विस्तृत रूप से अभिधम्म की देन है। उसके पहले इस किस्म से इतने व्यापक रूप में वो नहीं आए थे। कमठान उस किस्म से 40 के रूप में मूल त्रिपिटक जो है सुत्त और विनय में उसका प्रसंग नहीं मिलता। कहा जाता है कमठान जो है वो आचार्य बुद्ध घोष ने सबसे पहले विशुद्धि मग्ग में उसका वर्णन किया और आगे चल के अभिधम्मत्थ संग्रह में वही चीज आई। इस सारी की पृष्ठभूमि जो है वो है जो सुत्त और विनय में भगवान बुद्ध के मौलिक उपदेशों में मिलता है। जो मिलता है वो सतिपट्ठान है, स्मृति प्रस्थान, माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस को लेकर के जो टेक्स्ट में कई बार सतिपट्ठान सुत्त और महासतिपट्ठान सुत्त दो मैंने जिक्र किया है। महासतिपट्ठान सुत्त दीघ निकाय में मिलता है, सतिपट्ठान मध्यम निकाय में मिलता है। वहां जो माइंडफुलनेस को एक्सप्लेन किया है, जो ओरिजिन है समथ और विपस्सना की पूरी फिलॉसफी की, दैट इज माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स, माइंडफुलनेस ऑफ द माइंड and mindfulness of the phenomena. Body nowadays in the West, especially the mindfulness term is extremely important. For model psychology also, they are doing a lot of mindfulness things. And lot of modern words have come into existence because of this mindfulness thing. Walking meditation, for example, famous Vietnamese Buddhist monk Thich Nhat Hanh, who coined this word, engaged Buddhism. And the engaged Buddhism, the part of the engaged Buddhism is the mindfulness, walking mindfulness, mindful eating, mindful drinking. So this body, and it is not so that this is something new which they have derived. ये बार बार भगवान बुद्ध इस बात पे जोर देते थे कि आप कैसे चलते हैं, आपकी बॉडी कितनी कंपोज्ड है। आप एक काय लहुता शब्द शायद आया हो अभिधम में पीछे के पढ़ाने में, शरीर का हल्कापन, योर बॉडी पोस्चर, हाउ डू यू वॉक, how you are mindful of your bodily actions. If you are eating, if you are eating, you should be engaged in you should be eating mindfully. You should how your hand is going to the food, how you are taking the bite, what is the color of your dal, everything is a part of the mindfulness. So that was elaborated, already established. And in the early Pali literature, it was very much like when the Buddhist monks used to go, Buddhist nuns used to go to the villages for the alms begging. It was a common message of the Buddha that your body, your walking style, your way of talking, your way of eating, your way of accepting the alms, everything should be composed. That was the part of the mindfulness of the body. What is happening in your body from the bottom to the top, that should be your way of life. अभी आयुर्वेद में बोलते हैं कि यदि आप अपने शरीर को अच्छे से जानते हैं तो कहीं कोई चेंजेस आएंगे
तो आप अपने रोग को सब डॉक्टर से भी पहले पकड़ सकते हैं। दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी, mindfulness of the Vedana, mindfulness of the mind. Vedana, what kind of Vedana? If you are getting angry, are you mindful of your anger? Are you mindfulness of hatred? Are you mindfulness? Are you mindful of your love? So whatever feeling, are you mindful of your pain? So that thing was taught in the mindfulness of the Vedana Sati. In mindfulness of the body, of the mind, what is happening in your mind? Is it getting deviated? Are you in the classroom but your mind is somewhere else? That was part of the Satipatthana. स्मृति का प्रस्थान, स्मृति को प्रवर्तित करना और अपने कंट्रोल में रखना. And mindfulness of the phenomena, what is happening in the nature, what is happening around you. These things were explained in the Satipatthana Sutta. Many sects of Buddhism in the whole world, उन्होंने बोला कि भाई समथ विपස්සना के झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे, हम सतिपट्ठान को लेकर के चलेंगे. तो ऐसे भी सेक्ट या ऐसे भी संगठन हैं जो बोलते हैं हम केवल सतिपट्ठान पे चलेंगे, बिकॉज समथ एंड विपස්සना हैज सर्टेन डिबेटेबल इश्यूज, जिस पे मैं आगे आऊंगा. देन एज आई मेंशन, समथ derived from the root sama, subdue, shanti, quietude, tranquility. और मैंने इसकी परिभाषा बताई ही आपको, कुशल चित्त एकाग्रता ही समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है. और समथ के माध्यम से यू आर एबल टू temporarily control or inhibit the certain hindrances of your mind. अब उनको कैसे कंट्रोल करें? उनको ऐसे तो आ नहीं जाएगा. I was talking to the lady from Romania that our mind goes here and there. So mind is like any other limb of the body. When we had fracture in the leg or any organ, जब पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, 1.5 महीने केवल प्लास्टर लग जाता है, तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करा के धीरे धीरे वो ताकत पूरी खत्म हो गई, फिर वो धीरे धीरे उसमें ताकत लाता है. डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आया था कि एकदम बेड रिडन आदमी जिसका कोई अंग नहीं हिलता था, धीरे धीरे उसने फिजियोथेरेपी से वो एकदम एक्टिव हो गया वापस. सो माइंड इज लाइक एनी अदर लिम्ब ऑफ द बॉडी. ब्रेन और माइंड कतई एक नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू टॉक इन द टर्म्स ऑफ द ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल सेंस, तो ब्रेन को भी एक्सरसाइज चाहिए, माइंड तो चाहिए ही. और उस एक्सरसाइज को करने के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स को बुद्धिज्म ने प्रिस्क्राइब किया, दोज आर नोन एज कर्मस्थान. कर्म स्थान टेक्निकली, बट एक्चुअली सब्जेक्ट्स ऑफ द मेडिटेशन. Then this chapter is divided in 2 parts, Samath Sangha and Vipassana Sangha. So Samath Sangha, समथ संग्रह में जो 40 कर्म स्थान 40 प्रकार के बताए गए हैं, वो 40 के 40 सबके लिए अप्लीकेबल नहीं थे. सारे के सारे उससे अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए ये आवश्यक नहीं था.
और उसका इसको तय कौन करेगा कि आपके लिए कौन सा कर्म स्थान, which कर्मठान is appropriate for your concentration exercise of the concentration, for your samatha practices. That will be decided by your guru. And guru is presented in the form of a spiritual friend here. Guru may be technically your guru or somebody who understands your mental status and who is well versed in the techniques of this thing, who has attained the height of the arahathood. तो उन 40 प्रकार के कर्म स्थानों का कर्मठान संग्रह में वर्णन आया है। उन 40 में से बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय प्रासंगिक थे, अब वो पॉसिबल नहीं है। उनका बहुत डिटेल में गए बिना मैं जिक्र करूंगा, जिसमें 10 है कसिण। कसिण का मतलब होता है होल या टोटल। Then 10 impurities, 10 reflections, अनुसति, 4 illimitables, अपमयायों, और 1 संज्ञा है, और 1 व्यवधान है, और 4 अरूप झान है जो पहले आप लोगों ने पढ़ा था, नॉन मैटीरियल ऑब्जेक्ट। तो ये 40 कर्मठान क्विकली देखना चाहें तो देख लें। जैसा मैंने पहले के लेक्चर में बताया है कि गणित से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि टोटल फिलॉसफी समझ में आए। तो आई एम नॉट दैट मच इनटू द, बट आई विल टेक वन एग्जांपल, द कसिण। द कसिण आर द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स which is used by you for the concentration exercise prescribed by your spiritual friend. अब वो spiritual friend, that spiritual friend is known as Kalyana Mitra in Pali, in Hindi and Sanskrit, Kalyana Mitra. The Mitra, the friend who wants your Kalyana. So that spiritual friend is known as Kalyana Mitra. So Kalyana Mitra, considering your background, considering your temperament, आपने घर छोड़ा, आप बौद्ध संघ में आए, आपने भिक्षु बनने का निर्णय लिया, कौन से कारण? पत्नी से झगड़ा हो गया, पति सताता था, घर के सारे लोग उन्हें घर से निकाल दिया, या सेना से भाग के आए हैं, या आपकी अपनी बहुत इच्छा है भिक्षु बनने की और साधना करने की। 1000 कारण हो सकते हैं। यदि थेरी गाथा आप पढ़ेंगे तो थेरी गाथा में देखेंगे कि इतनी सारी भिक्षुड़ियां, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। कोई उसमें बड़ा मुश्किल है कोहेरेंसी बिठाना। उसमें आप बहुत सारी आज की यदि जेंडर थियोरीज खोजने की कोशिश करेंगे या दलित बनाम सवर्ण थियोरी खोजने की कोशिश करें, बड़ी मुश्किल होगी। ब्राह्मण परिवार की भी स्त्री है, दलित परिवार की भी स्त्री है, कोई ऐसी भी है जो गरीब हो गई, सब कुछ लुट गया, कोई ऐसी भी है जो बहुत पैसे वाली है और बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती। तो the object, the mission of Kalyana Mitra is to ascertain your temperament, and all of us have certain temperaments. Someone has lot of हम कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कुछ लोगों को अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, बड़ी जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं, कुछ में इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परामेंट is elaborated later. 6 kind of temperaments are described.
So temperament, one thing, your social environment, your political and environmental, ecological environment, all these things will be taken into account. सारी चीजों को रख करके आपका कल्याण मित्र आपके लिए बोलता है कि इस पे ध्यान केंद्रित करो। कसिण जो कसिण कहे गए हैं वो क्यों कहे गए हैं? It is not possible to concentrate your mind on the Prithvi. Prithvi is a symbolic word. Prithvi means in the Abhidhamma, it is described that mitti ka, the clay, you make a circle on any plane surface as a symbol of Prithvi, using the mitti of approximately 1 foot size, sitting almost at the distance of 4 foot as per Abhidhamma, और आप उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं और आप मन में हल्का हल्का पठवी जो पाली में मिलता है, पृथ्वी आप अर्थ बोले हैं एज पर योर लैंग्वेज, उसका उच्चारण करते हैं और उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं क्रमशः। या फिर जब आपो की बात आती है, वाटर की, तो यू आर नॉट सजेस्टेड टू गो टू द ओशन एंड रिवर। एक पात्र में आप पानी लेते हैं और उस पात्र के पानी को आप ध्यान केंद्रित करते हैं और मन में उच्चारण करते हैं आपो आपो आपो, वाटर वाटर। और ये सिलसिला आपका हफ्तों चल सकता है, महीनों चल सकता है, सालों चल सकता है, लेकिन ये आपके माइंड को वापस लाने में और फोकस करने में धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने बोला फिजियोथेरेपी, इट हेल्प्स यू। जो नील पीत लोहित ओदात है, द फोर कसिणास, द कलर्स, these colors you can make the mandala of, and actually the whole mandala culture was developed from this concept of the kasina. The symbol of, because mandala is a symbol of the, technically for meditation, it's a meditation object, and at the last it is removed to show that impermanence of the life. So these kasinas can be used as akash, not to the open sky. You will have to create the akash. किसी होल, किसी ऐसे उसको बनाना होगा जिससे कि अंदर आपको वैक्यूम दिख रहा है, और empty space is there, and that will be decided by, or that will be prescribed by your Kalyana Mitra, how well versed you are and what is your background, what is your temperament. तो ये 10 कसिण बताए गए हैं उन 40 पे से। और मैंने शायद बोला हो, नहीं बोला हो, 40 के 40 नहीं किए जाते। 40 के 40 ये वेरिएशन, these are the types of the Kammathan, any one out of which would be prescribed by your Kalyana Mitra. अशुभ, जैसा मैंने बोला कि हर चीज वक्त के साथ रेलिवेंट नहीं रहती, उस समय थी। Someone was so attached to his or her beloved, or he or she passed away, और उसको शरीर से किसी को बहुत लगाव है। यदि बहुत प्रसिद्ध अश्वघोष के 2 बहुत प्रमुख महाकाव्य हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि के बाद दुनिया के भारत के संस्कृत कवि जो थे वाल्मीकि के बाद, वो अश्वघोष थे, और कालिदास पे बहुत गहरा प्रभाव था अश्वघोष का। अश्वघोष ने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे, 2 महाकाव्य लिखे, एक बुद्धचरित और दूसरा सौंदर्यानंद, जिसको गलती से बहुत सारे लोग सौंदर्यानंद बोलते हैं।
वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग गलती से शारीरिक भाष्य को शारीरिक भाष्य बोलते हैं। किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझसे बोला था कि जो व्यक्ति मेरे सामने आकर के शारीरिक भाष्य बोल देता है या सौंदर्यानंद बोल देता है, उसके बाद मैं उससे बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब ही बदल गया। तो खैर, सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद इज अबाउट द स्टोरी ऑफ द नंद एंड सुंदरी, बुद्धा's cousin नंद, whose wife सुंदरी was so सुंदर कि वो एकदम दीवाना था उसका, और उसी शादी के तत्काल बाद उसको बौद्ध भिक्षु बनना पड़ गया। वेव चल रही थी। अब वो सुंदरी के प्यार में पागल है। अब उसमें तो पूरी लंबी स्टोरी है। बुद्ध ने उसको फिर दिखाते हैं, बुद्ध क्रमशः, कि ये शरीर जो है वो कितना अनित्य है, कितना कितना नॉन एसेंशियल है। और ये कैसे जब जरा मरण का शिकार होता है, या कैसे जब उम्र होती है, तो जिसकी के प्यार में आपने सारी दुनिया से जंग ले ली थी, फिर वही अच्छी नहीं लग रही है, वही अच्छा नहीं लग रहा है? तो बुद्ध उसको बहुत सुंदर परियों को उपस्थित करते हैं अपनी जादुई शक्ति से, और फिर नंद उनको देख करके सुंदरी को भूल जाता है। और वो इतनी सुंदरी है कि फिर उसके बाद बुद्ध पूछते हैं कि देखा, तो नंद बोलता है कि साहब, उसके सामने तो सुंदरी कहीं ठहर ही नहीं सकती है, उनके पैरों की जूती नहीं है। फिर धीरे धीरे वो सुंदरियां आंख के सामने ही बूढ़ी होना शुरू होती, बाल पकने लगते हैं, शरीर पे झुर्री पड़नी शुरू होती है, दांत टूटने लगते हैं। ये पूरी स्टोरी सौंदर्यानंद यदि पढ़े, बहुत सुंदर काव्य है। तो उसके बाद उसे एहसास होता है। तो इस किस्म के लोगों के लिए इस किस्म के मेडिटेशन कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट बताए जाते थे। सड़ती हुई लाश, फूली हुई लाश है, वो कैसे एक सुंदर नौजवान लड़का या लड़की आपके सामने श्मशान में आ रहे हैं, या ऐसी जगह आ रहे हैं जहां रख के लोग छोड़ गए, उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं है, छोड़ गए, वो कैसे एक सुंदर चेहरा आंख के सामने, जो हम लोगों के साथ सबके साथ होता है। श्मशान जाते हैं तो एक दिन बड़े सारे के सारे हैं, बड़े डिटैच्ड हुए रहते हैं कि क्या है, हम लोग क्यों दूसरों से झगड़ा कर रहे हैं, क्या किस बात का जीवन है। क्योंकि आप हरिश्चंद्र घाट चले जाइए 4 घंटे, तो आपको अचानक जीवन की रियलिटी कुछ और लगने लगती है। तो ये 10 अशुभ बताए गए हैं जो आज के युग में अप्लाई नहीं किए जा सकते मेडिटेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। इसके बाद अनुसतीज आती हैं, 10 प्रकार के रिकलेक्शन भगवान बुद्ध के तमाम गुणों को रिकलेक्ट करना, उनकी स्मृति करना, उनसे प्रेरणा लेना, उनके बारे में बार बार विचार करना, धर्म के बारे में, धर्म के गुण, बुद्ध के 9 गुण है ना, 9 क्वालिटीज बुद्ध की एक्सप्लेन की गई है। इतिपिसो भगवा और हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु, इतिपिसो भगवा और हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, सत्था देव मनुष्यानम। तो ये 9 क्वालिटीज है। धर्म की 6 किस्म की क्वालिटी कही गई है। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको औपनयिको पच्चत्तम वेदितव्यो वियूही थी। तो इसी प्रकार से संघ के गुण बताए गए हैं। तो इन सारे के सारे उसको रिकलेक्ट करना, उससे प्रेरणा लेना, उसको बार बार लेना। फिर शील, आपने जो भी मोरल वर्क काम किए जीवन भर, उसका ध्यान करना, उससे
प्रेरणा लेना, उसको बार बार उसको रिकलेक्ट करना, वगैरह वगैरह। फिर देवास, काय, और यहां कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, द ब्रेथ, यहां डेथ टाइप हो गया। ब्रीदिंग, आनापान। आनापान इज द सेम वर्ड विच इज यूज्ड इन योगा, भारतीय योग प्राणायाम। आन और अपान, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। और उसी अर्थों में भी है सांस पे ध्यान केंद्रित करना, जो सबसे लोकप्रिय आज की दुनिया में मेडिटेशन की, विच इज नोन एज ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड सो ऑन, और माइंडफुल ब्रीदिंग, दोज आर described as a part of the Kammatthana. And then about Nibbana, recollection of the Nibbana. Brahma-vihar is a very well-known word. Sublime way of thinking, it is translated as technically station of Brahma or something. तो ब्रह्मलोक, क्योंकि द ब्रह्मलोक के जो वर्च्यूज हैं उसका, लेकिन popularly it is known as sublime way of teaching. Maitri, Metta, Karuna, Mudita, and Upekha. It is hardly known to the most of the people who are so much passionate about Buddhism. जब वो बाहर से, क्योंकि ये ब्रह्म विहार का इतना ज्यादा वर्णन आता है, या इतने ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़े जाते हैं, और इतना पैशन है लोगों को, और इतना फैशन है लोगों को इसके बारे में बोलने का, कि कईयों ने इसके नाम पे संगठन बना लिए हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल, इट इज ए पार्ट ऑफ द मेडिटेशन, इट इज द पार्ट ऑफ द समथ प्रैक्टिसेस। मुझे याद आ रहा है, मैं बड़ा आई वॉज यंग teacher in the department in, I think, 2001 or so. One gentleman from USA who had established the Brahma Vihar kind of foundation or some big association, big organization, Brahma Vihar, American fellow, well-known practitioner, बड़ा संगठन है। इंडिया आए उन्होंने, हमारे डिपार्टमेंट ने उनको, he was invited to give a lecture to us. He delivered an extensive lecture on why Maitri is so important. The whole world is afflicted by the conflict and blah blah blah. ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैत्री करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, है, मुदिता का भाव रखना चाहिए, उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। 1.5 घंटे का भाषण हुआ। किसी ने हमारे विभाग में से हाथ उठा लिया, उसने पूछा कि साहब, ये जो ब्रह्म विहार है, ये गोल है कि मीन्स? साहब धराशायी हो गए। हाँ, जब चली मार शमशीरन की तो महाराज मैं नाई हूं। हाँ, तो साहब मैंने तो अभिधम्म नहीं पढ़ा, आई एम सो सॉरी, आई नीड टू स्टडी अभिधम्म। भाई, आप सालों से, अब आपकी उम्र हुई 60 के आसपास, पिछले 40 साल से आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये गोल है कि मीन्स है। So that is the thing with the most of them. Why I am emphasizing about Brahma Vihar, be careful. Brahma Vihar is extremely important, but it is a part of the Samath practices. It is not your goal, and Brahma Vihar is not something which what you do in the regular life. Regular life, of course, it should be your regular behavior or regular, but that is, you have to inculcate sitting in the concentration. You have to inculcate. And it has given a certain methodology that you have to sit for to cultivate Maitri, unconditional kindness, or whatever. Maitri has been translated in many ways.
So you have to start with your enemy. अपने शत्रु को याद करके, sitting in the concentration, it is a part of your concentration exercises, and you just recall your enemy. But even before that, you should expand, because that is why this is called apamayayo, illimitable. These are 4 virtues which have no limit. As much as you can cultivate, as much as you can expand to the all 4 directions, it doesn't have any limit. So आप अपने जो सबसे नजदीकी है, उससे आप, जिसको बहुत प्यार आप करते हैं, उससे आप फ्रेंडलीनेस को यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग दैट मैत्री भाव. दैट इज नेचुरल, इट विल कम टू यू. देन यू हैव टू गो फर्दर, एंड एट द एंड you have to cultivate the metta bhavana for your enemy. That should be your goal. When you are able to do that, then your meditation and concentration practice is completed. You have achieved the goal. And that has to expand it to the whole world. And then karuna. Karuna, it is said that पर दुखे सती साधुनम हृदयम कंपनम करोती इति करुणा. इट इज डिफाइंड इन दैट वे कि जब दूसरे को देख करके सज्जन लोगों का हृदय एकदम कंपन करने लगता है, किसी को भी अनजान को, तो वो दैट इज कॉल्ड करुणा. देन sympathetic joy, the joy, or it is better translated as another place like empathy. तो आपको दूसरों की सफलता, जो 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि अपना दोस्त फेल कर जाता है दुख होता है, टॉप कर जाता है तो उससे भी ज्यादा दुख होता है. तो इट्स वेरी मच अबाउट द ह्यूमन टेम्परामेंट, ह्यूमन नेचर. वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग. तो दूसरे के दुख में करुणा, दूसरे के सुख में सुख, और अगेन दैट हैज टू बी कल्टिवेटेड, फर्स्ट for your own people, then gradually for the success of your enemy too. Upekha is not about any kind of, in a negative connotation, upekha is about even-mindedness. It is about equanimity. It is the most tricky word of the Brahma Vihara. But it is the most important word of the Brahma Vihara, because the other 3 are very commonly understood. Even-mindedness has to be developed, जिसे हम लोग स्थिति तज्ञ का जो भगवत गीता में बोलते हैं, उन अर्थों में जिसमें कि एक जापानीज बुद्धिस्ट मास्टर था, उसने बोला था कि इफ यू मीट द बुद्धा किल हिम. मतलब समझ में आया? If you meet the Buddha, kill him. It's a very famous dialogue of the famous master. If you are, इसी को विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में बोलते हैं, विमल कीर्ति, आचार्य विमल कीर्ति, कि if you are attached to nirvana, you are far from nirvana. So if you are attached to the Buddha, you are far from the Buddha. So if you meet the Buddha, kill him means यदि बुद्ध आपके ध्यान में बार बार आ रहे हैं, that means you are attached with the Buddha. And if you are attached with even the Buddha, if you are attached even with the nirvana, you are far from the ultimate goal. So that is upekha. Shall I stop here? आपका खाना तैयार है या चालू रखूं? टाइम हो गया, लोग भूखे हैं. Okay, we can continue later in the next class after lunch. जी धन्यवाद.
question answer we can take at the last, because we are dealing with the same subject in both the classes. Question answer बाद में ले लेंगे, और question answer उन जिन्होंने पहले नहीं पूछा है उनको अलाउ होगा, क्योंकि कुछ हाथ बार बार उठ जा रहे हैं और वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हाथ जो रह गए हैं, अब मैं उन हाथों को देखना चाहूंगा। ठीक है, तो 2:45 पर आप लोग एकदम आ जाइए एग्जैक्टली।